Purushottam Kumar Singh with us, and he will teach you chapter 3rd, that is Pakinak Sangah Vibhago of the text Abhidhammat Sangaha. So, before the formal start of the teaching, we have tradition to welcome our speaker. So, I request Dr. Rahul Kumar Maurya ji to welcome Professor Rana Purushottam ji with garland and shawl. Before I invite him to deliver his lecture and to teach you, I would like to introduce him formally. This is his brief biodata. Professor Rana Purushottam Kumar Singh started his academic career as an assistant professor in the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, after completing MPhil and PhD in the same department and from the same university. In September 2010, he was appointed assistant professor, Department of Pali, Nalanda Mahavihar, Nalanda in Bihar, a deemed university under the Ministry of Culture, Government of India. In November 2020, he became professor in the Department of Buddhist Studies, Nalanda Mahavihar, Nalanda. Currently, he is Dean Faculty of Buddhist Studies and the head of the Department of Buddhist Studies, Nalanda Mahavihar, Nalanda. In pursuance of his research, he has presented a number of papers in various seminars and conferences held from time to time in India and abroad. He has many published articles and books to his credit. In order to broaden his academic horizon and expand insightful paradigm, Professor Rana has done field work at different archaeological sites in Thailand, Cambodia, Vietnam, the Philippines, Pakistan, Malaysia, Sri Lanka, China, etc., in search of tangible as well as intangible Buddhist heritage. In 2015, Professor Rana was sent to Medan and Jakarta as expert of Buddhism during the Buddha Charika exhibition organized by the Ministry of Culture, Government of India. Embassy of India in Jakarta and now Nalanda Mahavihar. Professor Dr. Rana Purushottam Kumar Singh has also been associated as a member of the various professional and academic bodies of eminence like SSEASR, ICASP, ISBS, IOC, ISC, IPS, and BLIA, etc. So this is his brief biodata, and you will see him in him that how he correlates the textual study with the present context, and he will try to cover the entire content of chapter 3 today itself. So I invite you, sir. Please come on the podium. Good morning, respected Baleshwar ji, Rahul ji,
my future colleagues sitting here in the house. It's a very pious occasion for me to share my views, my ideas on Abhidhammat Sangha. And whatever I have experienced and experiencing today, you are also experiencing, and myself and you are same. There is difference of age and experiences. Otherwise, we all are same. We have to make effort to understand Abhidhammat Sangha, particularly the Buddhist psychology. Friends, Buddhist studies started in the world in 19th century or the end of 18th century with the efforts of Rhys Davids and his team. So, the tradition of Buddhism is very old, but the tradition of Buddhist studies is not very old. And you will be surprised, amazed to know how the journey of Buddhist studies from editing and bringing texts into light to the scientific experiments in Buddhism. And what is the achievement of 21st century in the field of Buddhist studies? The greatest achievement of 21st century is Buddhism became scientific. And scientific studies of Buddhist learning, Buddhist philosophy started in West and India as well. So, and this is not only with Buddhist studies, but the same phenomena, the same thing is developing in the all branches of Indian knowledge system. And all of you might be knowing that in India we have started philosophical counseling and philosophical therapy from the last 3-4 years in India. So, the scientific and experimental study of Indian knowledge system is going on, and I am inviting all of you to be an active participant in your research and studies. I congratulate Baleshwar ji for taking this Himalayan task to give you exposure of Abhidhammat Sangha, the most scientific text of Buddhist psychology. This is the most scientific text. All previous speakers, I hope they have given you exposure how this is scientific and how this is science.
isn't it? Because the language of science is little bit different and the language of classical scriptures and Indian philosophy is quite different. But the message is same. Whatever message conveyed by the Western scientific methodologists and Oriental methodologists. So these are the same, but there is difference of languages. I hope many of you are the students of Nyaya, logic. How many of you study logic here? Because this department is also, I think, many scholars are logicians here. How many of you study logic here? Indian logic and Western logic? You. Very nice, very nice. Very pleased to see you here. So, without taking, I I have many things to share with all of you because you all are brilliant students of BHU, but I have limitation of time. And I will request Baleshwar ji to organize extended workshop on Abhidhammat Sangoho. I will request Professor Sajdanand Mishra also, because in one workshop, Abhidhammat Sangoho can't be completed. I tell you, this is a pure science. Of course, the language is Pali, but the message given by this text is pure scientific message. So now I am starting the third chapter. Third chapter is miscellaneous in nature. That is why this is called Pakirnak Sangaho. Because in first two chapters, the base has been given. The basic knowledge of consciousness and psychic factors have been given. And in third chapter, there is a study of combination, promotation, and dialogue between consciousness and psychic factors. So, this is a little bit complex, but very interesting topic, very interesting chapter. I hope I can give you, I will be able to give you some message and you will understand the things. Is it visible to everybody? I should write in Roman or Devanagari. You are from Roman. और भी आपके फैकल्टी
आई डोंट केयर फॉर आगे करके पीछे वाले आगे हो जाए, वहां से आगे नहीं कम फॉरवर्ड, आगे 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 इससे सी संपयुक्ता यथायुग बेपन्यास स्वभावतो, बेपन्यास A means 3 plus पन्यास means 50. So ते पन्यास स्वभावतो means here we will study 53 dhammas, 53 types of, you may say, psychic factors and consciousness. Okay, चित्त चेतसिका धम्मा, चित्त चेतसिका धम्मा, consciousness and psychic factors. Okay, tesangani yathahang. So we will study the 53 dhammas, 53 phenomena, 53 elements. Many of you are, I hope, a student of philosophy of mind in West as well as in East, because we will cover one, that is a scripture, second, philosophical elements, third, psychology, and modern science. So first thing is a scripture. In a scriptural study, the scriptural position of this statement is, we have to study 53 things. In Buddhism, the total number of consciousness in first chapter and second chapter, your teachers have already explained. So I am not going to just repeat the things because we don't have time. Here, te panyas, 3 plus 50, 53. In 53, one is consciousness, means chitta. One is consciousness, and 52 is psychic factors, chetsik. Okay, so 52 plus 1 is 53. It's okay. Now, the students of philosophy can explain
what is the position of philosophy of mind in Western philosophy? How they establish dialogue with the other branches of philosophy and philosophy of mind. Kant, Wittgenstein, how they perceive mind in their own system of studies. बताइए कोई? They have different method to understand consciousness. Okay, I'm not going in detail. I'm just sowing a seed in your mind to perceive the Indian philosophy with Western philosophy, and not only Western philosophy, but its implication in science and day-to-day life. Because we can't and we should not study philosophy in isolation. It has relevance in day-to-day life. So, Panyas, one consciousness. The total number of consciousness in Buddhist psychology is 89 or 121. But here, in this chapter, the first verse says that the number of consciousness is only one. Okay? In modern psychology, when you study the personality, what is the definition of personality in modern science? The definition of personality in modern science is personality is dynamic combination of psychophysical elements of the body. Psychic body, dynamic combination, not a static combination. डायनामिक कॉम्बिनेशन फिलॉसफी वाले सारे समझ रहे हो ना, क्योंकि पाली और बुद्धिज्म वाले तो इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उनको भी और आपको भी आपको कनेक्ट करना है. आई हैव टू कनेक्ट विद बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, और बुद्धिज्म वाले को कनेक्ट करना है विद मॉडर्न साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी. ओके, क्योंकि जो तुम लोग टास्क लेके बैठे हो वो उतना आसान नहीं है. आसान क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है, पर्सनैलिटी है, ये मिलियंस सेल्स का कॉम्बिनेशन है. समझ रहे हो? एंड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस सेल्स, और ईच एंड एवरी सेल हैज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी. समझ रहे हो? हर सेल का अपना ब्रेन है. ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन ब्रेन, और सारे मतलब मिलियंस एंड मिलियंस एलिमेंट्स आर एक्टिव. अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा किच में कि मिलियंस सेल्स जो हैं वो 24 आवर एक्टिव हैं. समझ गए? अब इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट इज इन योर हैंड कि you control, you make your movement in positive direction or negative direction. This is the aim and objective of Buddha and Indian philosophy. Then I told you that we have millions of cells in our personality, and friends, each cell is full of all possibilities of the whole personality in totality. And this has been told in Upanishad, Purnamadah, Purnamidang, Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaye, Purnameva Vashishyate. पूर्णता में ही पूर्ण निवास कर रहा है. नहीं, अगर पूर्णता से पूर्ण को निकाल लो तो उस पूर्णता की सारी संभावनाएं इस पूर्ण में है. उस पूरे पर्सनालिटी की सारी संभावनाएं एक सेल में है. नहीं तो देखो, सब कनेक्ट हो रहा है. मॉडर्न साइंस कनेक्ट हो रहा है, इंडियन थॉट सिस्टम
और बुद्धिज्म तो पूरा पर्सनैलिटी के एनालिसिस पे डेडिकेटेड है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, एक कॉन्शियसनेस कहा कि देखो हम 89 की बात नहीं करेंगे, चित्त एक है। क्या है चित्त एक? बुद्ध ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दे दिया, आलंबने चिंतेति चित्तम। इसको छोड़ के सारा जगत हमारे लिए आलंबन है, और उस आलंबन पर जो भी हम सोचते हैं वह चित्त है, और वहीं से पर्सनैलिटी का काम शुरू होता है। नहीं, हाउ पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी स्टार्ट्स? इट स्टार्ट्स विद द थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। नहीं, डेकार्ट्स ने क्या कहा? आई थिंक देयरफॉर आई एम। नहीं, बुद्ध ने 2700 साल पहले कह दिया कि आलंबन पे जब चिंतन शुरू करोगे तो शुरू हो जाएगा काम। तो डेकार्ट्स अभी जो कह रहा है, बुद्ध ने 2700 साल पहले कह दिया, और ऋषियों ने, और मतलब जाने हमारी परंपरा कितनी पुरानी है। क्योंकि मित्रों, अभी मैं काम कर रहा हूं साइकोटिक एंड न्यूरोटिक डिजीजेज पे। तो जब उसकी हिस्ट्री मैंने खंगालनी शुरू की, तो जानते हो उसका हिस्ट्री ट्रेस हो रहा है प्री हिस्टोरिक फेज से, जो नियोलिथिक मेगालिथिक फेज में उस सोसाइटी का भी अपना न्यूरो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम था। खैर चलो, समय मिलेगा हम बहुत बात करेंगे तुमसे। तो एक कॉन्शियसनेस और 52 साइकिक फैक्टर्स। क्योंकि साइकिक फैक्टर्स कल आपको बताया गया होगा, एक कुपाद निरोधाच, एक कुपाद एक साथ उत्पन्न होता है, निरोधाच एक साथ खत्म हो जाता है। एक कुपाद निरोधाच एकालंबन बत्थुका। अब फिर बत्थु और आलंबन आगे पढ़ाएंगे आज। तो एकालंबन बत्थुका एक ही आलंबन पे काम करता है। चेतो युक्ता द्विपन्यास। ये चेतो युक्ता क्या है? चेतो युक्ता है क्योंकि ये कॉन्शियस फेनोमेना है। यह चित्त और चेतसिक क्या है? कॉन्शियस फेनोमेना है। तो चेतो युक्ता द्विपन्यास धम्मा चेतसिका मता। ये 52 तरह का जो धर्म है, यह चेतसिक है। ठीक है मित्रों, तो पहले 2 चैप्टर में तुमको अल्फाबेट सिखाया गया, ककहरा, क ख ग घ ए बी सी डी। नहीं, तो जब सिखा दिया गया, इसके बाद सिखाया गया मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा सिखाया गया। अब वर्ड बनाना सिखाया जा रहा है कि अ के बाद आ आकार लगा दोगे तो आ, और एक लेटर और उठा लो म, तो आम हो जाएगा। नहीं, तो तुमको जो अल्फाबेट सिखाया गया और उसको अब नया कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। तो अब तुम लोग भाषा के दर्शन में ये करते होगे, भर्तृहरि से लेके पाणिनि तक पढ़ते होगे, और नॉम चॉम्स्की तक पढ़ते होगे। तो हम कैसे शुरू होते हैं, पर्सनालिटी, लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी कैसे शुरू होता है? तो देखो, एक लेटर को उठाया अ को, उसमें मात्रा लगा दिया आ, आकार, अब फिर एक लेटर उठा लिया म, आम हो गया। तो आम हैज अ सेंस। नहीं, एक सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सेंस बना, आम मीन्स, अब अंग्रेजी वाले कहेंगे मैंगो। ठीक है ना? तो उसी तरह से कॉन्शियसनेस को उठाना है और साइकिक फैक्टर को उठाना है, और दोनों मिलके कैसे माइंड फंक्शन करेगा इसका अध्ययन करना है। ये कि इसीलिए मैं पाली एकदम तुमसे दूर कर दिया, केवल हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अगर मैं यही पाली डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा होता तो कहता कि बताओ संपयुक्त को संपयुक्ता क्यों कर दिया? यथा क्या है? इंडिक्लाइनेबल है। अब इस इंडिक्लाइनेबल का पार्ट कि सद पूरक है कि अर्थ पूरक है। अब मैं पूरा पहले लिंग्विस्टिक स्टडी करता, ठीक है, उसके बाद जाके फिर हम फिलोसॉफिकल मीनिंग में आते, लेकिन हम लिंग्विस्टिक स्टडी नहीं करेंगे। तो यहां देखो, अब इसमें हम 53 तरह के चीजों का अध्ययन करेंगे। ये 53 नहीं है, इसको लेखक ने संक्षेप में कर दिया, क्योंकि ये है 89 + 52।
समझ गए। लेकिन इस 89 को एक मान लिया, 1। कल हम लोग, हमारे विद्वान मित्रों से बात हो रही थी, तो हम लोग यही कह रहे थे कि भाई एक सूत्र को उठाइए दर्शन का और उसको एक को मान लीजिए एक्सिस एक्स, दूसरे को मान लीजिए एक्सिस वाई, और फिर दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर जो है सो साइंटिफिक मेथड से उस सूत्र को हम प्रूफ कर देंगे, मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ कर देंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पेशियो टेम्पोरल गैप द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट। इन वेस्ट they have mathematical expression and in east we have linguistic expression. Okay, we express things through similes, examples, etc. So this was the first verse that we will study 53 phenomena here. किसी को समझने में दिक्कत हो बताओ, और अनावश्यक नहीं, रेलिवेंट बात ही करना। अभी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही है पर्सनालिटी पे, फंक्शन ऑफ पर्सनालिटी पे, उसको तुम लोग खरीदो, डाउनलोड करो और पढ़ो। देयर आर मेनी बुक्स। क्योंकि अब देखो आगे कहता है वेदना हेतु तो, वेदना फीलिंग्स, हेतु तो हेतु रूट्स, किच कृत्य फंक्शन, द्वार डोर, आलंबन ऑब्जेक्ट, बत्थु is also kind of object, ये एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्तुपाद वसेन, ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस। संगहो मीन्स, संगहो का मतलब देखो, जो मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसमें एक शब्द के कितने कितने अर्थ होते हैं। तो यहां तो तुम संगहो, संग्रह जो है वो, यू माइट बी नोइंग संगहो मीन्स डिपोजिटरी, टू डिपॉजिट थिंग्स, लेकिन पाली में यहाँ पर संगहो मीन्स ब्रीफ होता है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, वेदना हेतु तो किच द्वार आलंबन बत्थु तो चित्तुपाद
संगहो नाम नियतो, मतलब हियर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फर्स्ट वेदना, okay, then hetu, then किच्च function, then द्वार door, नहीं, और then आलंबन object base, and then bathu, this is also a kind of Veds, and चित्तुपाद origin of consciousness. अब तुम कहोगे कि ये वेदना हेतु आलंबन द्वार इत्यादि के अध्ययन का व्हाट इज रेलिवेंस ऑफ स्टडी ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग, इन इंट्रोडक्शन, द प्रीवियस स्पीकर्स might have introduced you Abhidhamma and Abhidhammat Sangaho. Okay? Abhidhamma is the psychic study of philosophy, psycho-ethical elements of Buddhist scripture, and Abhidhammat Sangaho is manual. There were 3 stages, friends. Abhidhammat Sangaho. The first stage was canonical literature. The second stage was commentaries, and the third stage was manual. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में सारा इस्टेब्लिश किया गया, एंड दैट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द बुद्ध हिमसेल्फ, सो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो कैनोनिकल लिटरेचर में जब साइकोलॉजी शुरू होता है, तो कैनोनिकल लिटरेचर का जो फर्स्ट टेक्स्ट है, क्योंकि देखो ये जो है मैनुअल, मैनुअल को कहा जाता है 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स। तो ये क्या करता है, कैनोनिकल में सारी चीजें बता दी गई, मैं एक्सपोजर दे रहा हूं, और जो टेक्निकल टर्म्स थे कमेंटेटोरियल एक्सपोजिशन में, एग्जिगेसिस में इसको एक्सप्लेन किया गया। सो कमेंट्रीज आर सम सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी ऑल्सो, क्योंकि कोश का भारत में ये है ही, यू नो, मतलब उसमें एक एक वर्ड को तोड़ के समझाया जाता है। अब मैनुअल क्या करता है कि इसने जो बताया, इसने जो एक्सपैंड किया, सबको गागर में सागर, द मैनुअल्स पुट ऑल ओशन इनटू वन पॉट, ओके, सो दे क्रिएट सूत्राज लाइक दिस। वेदना, अब इसको एक्सप्लेन करोगे, अभी करने जा रहे हैं। हेतु को करोगे, कई पेज में एक्सप्लेन होगा। किच को करोगे कई पेज में, इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन मेनी पेजेज। द्वार इन मेनी पेजेज, आलम्बन in many pages, bathuto many pages. So, and they have just condensed in one verse. तो अब देखो ये वेदना और हेतु क्यों अभिधम्मत संगोह में कहा कि इसका अध्ययन जरूरी है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल लिटरेचर है धम्म संगनी, वो कहता है तीनी कुशल मूलानी, अलोभो अदोषो अमोहो, तंग संपयुक्तंग, वेदना खंधो, संज्ञा खंधो, संखार खंधो, विज्ञान खंधो, and then the combination starts. This is, the whole text is based on combination and analysis. तो देखो वेदना खंधो, वेदना फीलिंग्स पे सारी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है,
तुम किसी चीज को, चूंकि ये 3 तरह की वेदनाएं हैं, सुखद, प्लीजेंट, दुखद, अनप्लीजेंट, एंड उपेक्षा, न्यूट्रल. It depends on you how you see the things, objects, and how your personality reacts. नहीं, अब मान लो किसी पड़ोसी का बेटा IAS बन जाता है. He becomes a very high positioned officer in India. अब एक पड़ोसी जो है उसको की मिठाई बांटता है, चलो कुछ भी है तो मेरा पड़ोसी ही है ना, मेरा भतीजा ही है ना, तो मिठाई बांटता है और एक घर बंद कर लेता है कि हरामजादा IAS बन गया, अब तो इज्जत आएगा. अब उसका जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, वो निगेटिवली एक्टिव हो गया. जब निगेटिवली एक्टिव हो गया तो निगेटिव हार्मोन, तो उसको ब्रेन ट्यूमर और ये सब कुछ हो जाएगा. सोचो, बात बहुत छोटी है लेकिन इट कंट्रोल्स योर लाइफ. नहीं तो एक मिठाई बांट के पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर लिया और उसके सारे सेल पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं. नहीं, और एक जो है निगेटिवली जो है सो चार्ज हो गया और उसका सारा सेल निगेटिवली जो है सो रिएक्ट कर रहा है. घटना एक है. बात समझ रहे हो ना? इसीलिए भगवान बुद्ध ने, चूंकि उनको समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश करना था, बुद्ध wanted to establish dialogue with the last person of the society. तो वो कैसे डायलॉग इस्टेब्लिश करेंगे? आम आदमी की भाषा में बात करेंगे तब ना. नहीं तो तुम गांव में जाके और फ्रेंच बोलने लगो तो सब जो है सो कहेगा कि फलनवा का बेटवा जो है वो पगला गया है, अब इसको साइकियाट्रिस्ट के यहाँ ले चलो. नहीं, और अगर तुम भोजपुरी और अवधी में समझाओगे कि का भैया जाना था मन का होला, अब तुम बताओगे कि देखो ऐसे ऐसे मन होला, ऐसे ऐसे जो है सही फंक्शन का, सब कहेगा बात तो बहुत सही है कि हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए. नहीं, तो देयर वाज a new method in studies in India first time, and the dialogue was established. Dialogue was established with the last person of the society. नहीं, तो वेदना को समझा गया. क्योंकि देखो आज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो वेदना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, मैं लास्ट डे 15 मिनट पर्सनैलिटी बताऊंगा. मॉडर्न साइंस और बुद्धिज्म कैसे एक ही बात कर रहा है साइकोलॉजी पे. मैंने पूरा साइकोलॉजी को प्रूफ कर रखा है अभिधर्म के अनुसार, पूरा. नॉट ओनली साइकोलॉजी बट न्यूरो साइंस ऑल्सो. अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा. तो देखो, वेदना, हेतु, रूट्स, किस कारण से तुम्हारा थॉट प्रोसेस शुरू होता है. कर्म ये किच साधारण कृत्य नहीं है, ये माँ के गर्भ में एंट्री से लेके मृत्यु तक के समय की साइकोलॉजी जो है वो किच में उसका अध्ययन होता है. द्वार जो है ये तुम जो समझते हो कि ये केवल आंख है, दिस इज only eye, a sense organ, but this is not the sense organ, this is the door to enter into your psychic personality, the real personality. नहीं, तो ये डोर है, तो डोर द्वार का अध्ययन करेंगे. क्योंकि बुद्धिज्म में कहा है कि चक्षु इति न चक्षु गोलकम, ये आंख जिसको कहते हो ना, ये आंख की ये मंस चक्षु नहीं है, दर्शन समर्थता ति चक्षु, देखने की क्षमता जो है वह आंख है. देखो बहुत सारे अंधे का आंख दिखता है कि नॉर्मल है, लेकिन वो देख नहीं सकता. समझ गए ना? तो चक्षु इति न चक्षु गोलकं अपितु दर्शन समर्थताति चक्षु, देखने की क्षमता. तो देखने की क्षमता कहां से है? दिस इज फ्रॉम ब्रेन. तो मैन कहां से देखता है? मैन सी थ्रू ब्रेन. ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है. मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि दिस इज द डोर ओनली.
यही द्वार, ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस की बात मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म। ये कहता है कि आंख जो है दिस इज अ डोर ओनली एंड वी सी थ्रू ब्रेन, न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। अब अभी उस पे भी बात करेंगे। तो आलंबन पे बात, तो ये सारे कंपोनेंट पे 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट पे इस अध्याय में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सूत्र में। तुम लोग तो खाना खा के जाके सो जाते होगे, कैसे नींद आती है। इतना बड़ा टेक्स्ट और इतनी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तुम लोगों में से किसी ने प्रपोज नहीं किया कि खाने के बाद फिर हम लोग बैठेंगे और पोस्ट डिनर टॉक शुरू होगा। ये तो कोई नहीं किया, मत करो। ये जो रामायण में तुलसीदास जी कहे हैं ना कि जन्म जन्म मुनि तपहि कराही, बहुत अच्छे पुण्य के बाद ये अवसर मिलते हैं। इसका लाभ उठाओ, एक एक क्षण का लाभ उठाओ, जो क्षण उपलब्ध है उसका लाभ उठा लो। बुद्ध कहते हैं कि जो लब्ध क्षण है उस लब्ध क्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। तुमको पढ़ाने के लिए हम रात भर नहीं सोए, क्योंकि इतना बढ़ गया मेरा नोट्स कि अब उसको हमको 2 घंटा बनाने में रात भर लग गया। क्या बताऊं। देखो तब जो है सो वेदना संग्रह 3 प्रकार का है, सुखं, दुखं और अदुखम सुखा। दुखं सुखा, ठीक है। इसके बाद फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है सुख आदि, सुख आदि वेदनानंग, वेदनानंग तंग सहगत तंग सहगत चित्तुपादानंग च विभाग वशेन संगहो वेदना संगहो। सिंपल सी बात है कि जो तीनों वेदना का जो अध्ययन है इसीलिए इसको वेदना संगहो कहा गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब वेदना, ये इसमें कोई इस सूत्र में ज्यादा बात नहीं है, मतलब सुख दुख, और इसको अलग अलग टेक्स्ट में कि कहीं इसको उपेक्षा वेदना कहा गया है, समवेयर इट इज कॉल्ड उपेक्षा, न्यूट्रल फीलिंग। वेदना मीन्स फीलिंग, ओके। तो समवेयर इट इज दुखम अदुखम सुख, अदुखम सुखा, दुखम दुख अदुख, अदुख मतलब जिसमें दुख नहीं हो तो सुख हो गया। तो ये उपेक्षा वेदना को इस तरीके से कहा गया।
तो कहा क्या इन्हीं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। अगला, अब देखो वेदना का डेवलपमेंट, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या है, इन एवरी स्क्रिप्चर्स द थिंग्स आर डेवलप्ड, थिंग्स आर एक्सपेंडेड, क्योंकि बुद्धिज्म इज द स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म इज वेरी डिफरेंट। ओके, तो द होल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल स्टडीज। ठीक है, उसको कहते हैं मातिका। अब मातिका क्या है, माते ती मातिका। तुम यू आर वेरी स्मॉल किड आफ्टर बर्थ, इन्फेंट, बट इन बुद्धिज्म birth is entering into the womb of mother. Delivery is not birth, because entering into the womb of mother starts all process of the life. Okay, so in modern science also and in Buddhism also, birth is entering into the womb of mother. माँ के गर्भ में प्रविष्टि ही जन्म है। ठीक है, तो जैसे माता एक छोटे से बच्चे को बढ़ा देती है, नहीं, और बढ़ा के तुमको 6 फीट का बना दिया, उसी तरह से कैटेकिज्म जो है, प्रश्न जो है, वो धर्म को, फिलॉसफी को बढ़ाता है। जैसे कतमे धम्मा कुशला, हाउ मेनी धम्माज आर मोरल, हाउ मेनी धम्माज आर इमोरल, हाउ मेनी धम्माज आर न्यूट्रल। अब इसका तुम जवाब दोगे, जैसे मान लो कि अब तुम्हारा एक संक्षिप्त परिचय है, यू जस्ट केम हियर, लेकिन अब तुम्हारा बगल वाला माता की भूमिका में आएगा, पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है, तुमने कितने पेपर्स लिखे, तुमने कितने बुक लिखे। अब तुम्हारा होल पर्सनैलिटी निखर के आ जाएगा ना सामने। कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन आयर। नहीं, द क्वेश्चन आयर जो कहते हो कि दिस इज न्यू मेथड, बट ये तो 2700 साल पहले क्वेश्चन आयर आ गया भारत में। नहीं, मातिकाओं के द्वारा दिस इज कैटेकिज्म। अब कैटेकिज्म, अब मातिका शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, दिस इज जनरली ट्रांसलेटेड एज मैट्रिक्सेज, मैट्रिक्स जो कि मैथमेटिकल टर्म है, कैटेकिज्म, क्वेश्चनायर, but these all English terms are not appropriate translation of the term मातिका। ठीक है, समय कम है और इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बुद्धिज्म में, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बुद्धिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, तो देखो, सुत्त पिटक का नाम सुना होगा। ये कहता है कि वेदना एक है, फीलिंग इज फीलिंग। पहले तुम समझो कि वेदना, फीलिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो फीलिंग इज वन, जैसे कि उसमें 89 तरह के कॉन्शियसनेस को कह दिया कि कॉन्शियसनेस इज वन, बिकॉज कॉन्शियसनेस वाज नॉट इंपॉर्टेंट देयर, द इंपॉर्टेंट वाज 52 टाइप्स ऑफ साइकिक फैक्टर्स। ओके, अब देखो साइकिक फैक्टर भी बहुत आसान है समझना। साइकिक फैक्टर क्या है? साइकिक टेंडेंसी, जो कॉन्शियसनेस तो बहुत डायनामिक है, लेकिन एक इसेंस जो डेवलप होता है उसी को साइकिक फैक्टर कहते हैं। जैसे ये कलम पड़ा हुआ है टेबल पे और कोई नहीं है या सब लोग हैं, तुमने कलम को देखा, इसकी उपयोगिता को देखा कि आई एम राइटिंग वेरी नाइसली ऑन बोर्ड, ताकि इसकी यूटिलिटी है मेरे लाइफ में भी। तब तुम्हारे मन में एक बात जगी कि आज हम सबसे लास्ट में उठेंगे, जब सब चला जाएगा तो धीरे से इसको जेब में रखेंगे, कौन देखेगा। ठीक है, तो देखो
जो यूटिलिटी पोटेंशियलिटी पे जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, दैट इज डायनामिक वन, एंड दिस इज कॉल्ड चित्त. बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ चित्त, आलम्बने चिंतेति चित्तं, दिस इज आलम्बन, एंड ऑन दिस ऑब्जेक्ट योर थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स. तो इस आलम्बन पे चिंतन शुरू हो गया, दिस इज कॉन्शियसनेस. लेकिन इस कॉन्शियसनेस के पीछे एक साइकिक फैक्टर जनरेट हो गया कि इसकी जरूरत मुझे भी है, एंड आई शुड टेक इट अवे. तो वो हो, उसको क्या कहेंगे? ग्रीड, लोभ कहेंगे ना. दैट ग्रीड इज साइकिक फैक्टर, एंड द डायनामिक थॉट प्रोसेस इज कॉन्शियसनेस. समझ गए होगे तुम लोग? कॉन्शियसनेस समझा सबने, साइकिक फैक्टर समझा सबने? ओके. तो सुत्त पिटक में कहा कि वेदना एक है, फीलिंग इज वन. दिस इज ऑल मॉडर्न साइंस एंड फिलोसफी ऑफ साइंस इन वेस्ट एज वेल एज ईस्ट. तो कहा कि भाई सुत्त पिटक में एक है वेदना, लेकिन आगे सुत्त पिटक में कहा कि मान लो दो. दो क्या है? सुख प्लस दुख. बोला कि न्यूट्रल तो फंक्शनल है नहीं, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं अभी. ठीक है. तो इस फिर आगे सुत्त पिटक में कहा कि नहीं, दो है. फिर जो है धम्म संगिनी में कहा कि नहीं, वेदना धम्म संगिनी में कहा कि वेदना तीन है. ठीक है. क्योंकि धम्म संगिनी इज द डोर ऑफ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी. और फिर विभंग जो है, धम्म संगिनी के बाद अगला टेक्स्ट क्या है? विभंग है. तो विभंग में जो है, विभंग मतलब होता है विभाजन. इसमें कहा कि पांच है. क्यों पांच है? क्योंकि आगे इसमें कह दिया कि बोलो पांच. दो कौन है? हाँ, सोमनस्य. कभी कभी दिमाग से निकल जाता है. सोमनस्य और दो मनस्य. अब देखो, इसने जो है सो फिर दो नया कॉन्सेप्ट, दो नया कॉम्बिनेशन जनरेट किया. क्या जनरेट किया? सो मनस्य. सो का मतलब प्लीजेंट, प्लीजेंट. अब मन का मतलब हो गया मेंटल, अब प्लस फीलिंग, वेदना. नहीं, तो इसको कहा कि जब वेदना प्लीजेंट फीलिंग के साथ जुड़ जाएगा तो सोमनस हो गया. तो कहा कि इसको भी एक मानो. अब फिर दो मनस का मतलब हो गया अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मेंटल फीलिंग. अब इसको लेके जो है सो कितना हो गया? पांच. पांच हो गया ना. तो फर्दर जो है सो पांच वेदनाएं हो गई, सुखा, दुखा, उपेक्षा, सोमनस, दो मनस. ठीक है. अब मित्रों, इसके बाद वेदना को फिर कहा कि देखो अब ये जनरेट कैसे होगा. तो एक कहा कि इंद्रिय भेदनय, मतलब इंद्रिय के कारण उत्पन्न होता है. ठीक है. आंख तुम्हारा देखा तो वेदना उत्पन्न हुई. लेकिन अगला कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ वो कहा आलंबन भेदनय. आलंबन भेदनय. आलंबन मीन्स
हर इंद्रिय का ऑब्जेक्ट है, आंख का दृश्य वस्तुएं हैं, मतलब इसको छोड़ के ये सारा आलम्बन है ना। तो एक कहता है कि इंद्रिय के कारण वेदना उत्पन्न होती है, और दूसरा कहता है कि आलम्बन के कारण वेदना उत्पन्न होती है। बात एक ही है, लेकिन न्यूरोसाइंस में, यहां पर बुद्धिज्म को गौन करो, न्यूरोसाइंस में फीलिंग को थोड़े थोड़े चीजों के कारण मीनिंग बदल जाता है। अब आलम्बन में आलम्बन इंपॉर्टेंट हो गया नहीं, और इंद्रिय में इंद्रिय इंपॉर्टेंट नहीं। मान लो कि तुम लोग यंग लड़के हो, कोई सुंदर महिला को घूरे जा रहे हो, आलम्बन है। क्योंकि निगेटिव एग्जाम्पल देने से चीजें ज्यादा समझ में आती है, और उसका पहलवान पति जो है बाद में उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है, तो तुम्हारा सारा सोच, हवाई किला 2 मिनट में ध्वस्त हो जाता है कि नहीं, है ना। तो आलम्बन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, समझा? ठीक है। तो दो तरह ओरिजिन ऑफ वेदना को दो माना, एक शास्त्र कहता है कि इंद्रिय भेदनय है, और एक कहता है कि आलम्बन भेदनय। इंद्रिय भेदनय मीन्स डोमिनेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, एंड आलम्बन भेदनय का मतलब डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, किसी को कोई दिक्कत? देखो, ये सूत्र संख्या 4 है पकिन्नक संग्रह का। जो सूत्र, सारे सूत्र दिए हुए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में। चौथा सूत्र है, ये कहता है सुख सहगतं कुशल विपाक काय विज्ञान। सुख सहगतं मतलब सुखा वेदना, प्लीजेंट मेंटल फीलिंग। क्यों? सुख सहगतं कुशल विपाकं काय विज्ञान। Whatever you have done in your previous life means the previous days of your present life, and previous life means in your past lives. Whatever merit you have acquired, because of that merit you are experiencing sukh sahagatan kusal vipak kay vijnanam. You can perceive, you can see in your present life, there are millions of people residing in the bank of nala, drainage. They always 24 hours they smell dirts, bad smells. They listen bad words. झुग्गियों में जाओगे तो पति पत्नी पर खुश होता है तो उसको 2 गाली देता है, पत्नी पति पर खुश होती है तो 2 गाली देती है। अरे नसपिट्टे, कहा कि ये काम कर दो, अभी तक नहीं किया। खुश है वो, शी इज हैप्पी, बट शी इज अब्यूजिंग हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन तुमने क्या किया
कि आज इतने अच्छे कपड़े पहन के, इतने अच्छे माँ बाप, एंड यू आर लिसनिंग बुद्ध वचन, you are listening the Indian knowledge system, you are listening Indian as well as Buddhist psychology. Do you feel there is difference between you and the people residing in slums? So according to this scripture, Abhidhammat Sangho, this is your vipak means resultant of your karmas. Okay? And दुख स्वागतंग अकुशल विपाक, और वो दैट फेलो इज एक्सपीरियंसिंग वेरी बैड, और तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो. इफ यू आर ए टीचर, you are not doing justice with your students, then there will be a lot of problem, distress in your life, because the life of a teacher is very sensitive. नहीं, बहुत सेंसिटिव है शिक्षकों का. और तुम्हें इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा सुत्त पिटक में, एवं जातेन मच्चेन कातब्बं कुशलं बहु. इस प्रकार, एवं जातेन, जिसने जन्म ले लिया, मच्चेन, जो मर्त प्राणी, मोर्टल जीव जो है, वो जन्म ले लिया, उसको बहुत सारे कुशल कर्म करने चाहिए. अगर वो कुशल कर्म नहीं करेगा, क्योंकि सारा चीज डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड है वर्ल्ड में. यही तो बुद्ध ने कहा जब पहली बार, व्हेन ही गॉट एनलाइटनमेंट एंड ही issued फर्स्ट स्टेटमेंट दैट यदा हवे पातु भवन्तु धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतोपजानाति सहेतु धम्मं. ये पहला स्टेटमेंट है भगवान बुद्ध का कि जब धर्म का स्वरूप, द रियल नेचर ऑफ धर्मा इज क्लियर टू अ मेंडिकेंट, a thinker, a meditator, mendicant. यदा हवे पातु भवन्तु धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य. उस ब्राह्मण को जो ध्यानी है ज्ञानी है, और जो ध्यानी है वो ज्ञानी है, वो सब ब्राह्मण है. समझ गए ना? वो दे ऑल आर ब्राह्मण्स. तो आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंका, ऑल डाउट्स आर रिमूव्ड. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यतोपजानाति सहेतु धम्मं, द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड. होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड. और वही डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड क्या है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हेतु. ठीक है? तो ये सारी चीजें, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का फर्स्ट टेक्स्ट से लास्ट टेक्स्ट सारा कनेक्ट होता है एक दूसरे से. समझ रहे हो ना? तो अब जो है सो इस तरीके से मित्रों, वेदना जो है वो एसोसिएट होती है थॉट प्रोसेस से. अब जैसे पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है इस टेक्स्ट का, पांचवा कोई पढ़ो. यू रीड आउट द फिफ्थ वन. तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? वेरी गुड. चलो. ओ शी इज टीचर. आपको मैंने बताया था ना कि जितने भी कलीग हैं आपके, पहले इंट्रो कराइए, और सब उनको परिचय कराना था. चलिए, कोई बात नहीं है. तो आप कनेक्ट हो रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके. महगत. फिर से पहला लाइन पढ़िए.
अब यहाँ देखो, यहाँ बता रहा है, सॉरी, आचार्य अनिरुद्ध बता रहे हैं कि सोमनस्य सहगत चित्तानीपन लोभ मूलानी चत्तारी। जितने सोमनस्य सहगत हैं उसमें 4 जो है, मैंने अभी रूट की बात की ना, हेतु की बात की ना, तो उन्होंने कहा देखो ये सारी चीजें, मैं तो अभी तेजी में बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन तुम टेलीग्राफिक लैंग्वेज में लिखो और इस पे बैठ के चिंतन करो। नहीं चिंतन करोगे नहीं होगा, मैं तुमको बताता हूं। तो ये हेतु में लोभ हेतु जो है ना, क्योंकि 6 हेतु है, लोभ दोष मोह, अलोभ अदोष अमोह, तो यहाँ पे लोभ हेतु फंक्शन कर रहा है, समझ गए ना। लोभ हेतु फंक्शन कर रहा है, कहां कहां कर रहा है, सो मनस्य सागर चित्तानी पन लोभ मूलानी चत्तारी द्वादश कामावचर शोभनानी। 12 जो है कामावचर शोभन है। अब कामावचर शोभन तुमको बता दिया गया होगा, सोमनस्य सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं, सोमनस्य सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिक। अभी सब में साइकोलॉजी है, अब इतना डिटेल में हम जाएंगे तो हम 12 एक दिन में भी नहीं खत्म कर पाएंगे, समझ गए ना। क्योंकि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न न्यूरो साइंस, मॉडर्न न्यूरोप्लास्टिसिटी सब कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, समझ गए ना। तो इसमें कहा कि भाई लोभ मूलक चित्त ये है, दिस इज रूटेड इन ग्रीड, अंडरस्टैंड। इसके बाद पठम ध्यानंग, ये भी तुमको बता दिया गया होगा, रूपलोक में वितक विचार पीति सुख एकाग्रता सहित पठम ध्यान। तो ये सारे जो 5 हैं वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचमम ध्यान, ये सब में जो है सो रूट इन्वॉल्व है और वेदना इन्वॉल्व है। इसमें कहा गया दिट्ठी ये, और इसमें 46 तरह का चेतसिक इन्वॉल्व रहता है। 46 चेतसिक भी बता दिया गया होगा, उसमें आइए समान भी बता दिया गया होगा, शोभन भी बता दिया गया होगा और कुशल भी बता दिया गया होगा। तो इसको डिस्क्रिमिनेट करके समझने की कोशिश करो, नहीं हो तो फिर आज इसको कॉम्बिनेशन बनाओ, ए का कॉम्बिनेशन बी का कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन बनाओ, और फिर अगर नहीं होता है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं छठे पे। छठा इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये आज सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, समझ गए ना। सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है छठा, 6th वन, ये है दो मनस्य सहगत चित्तानी वन पटिग, पटिग संपयुक्त चित्तानेव। अब देखो ये जो है सो इसमें 22 इमोरल तो इन्वॉल्व है ही, इमोरल चेतसिक, ठीक है ना। ये जो बच्चों पटिक संपयुक्त चित्त उत्पन्न होता है, ये जब भी इलविल से यू आर डूइंग एनीथिंग फ्रॉम एब्यूजिंग समवन, नहीं, फ्रॉम मेंटल प्रोसेस, मानसिक कार्य जब करते हो, मानसिक कार्य माइंड के लेवल पे होता है, ठीक है। मनोकर्म जब करते हो वहां से शुरू होता है, दूसरे के प्रति इलविल लेके। मनोकर्म, वचीकर्म जब किसी को अब्यूज करते हो, when you are abusing someone, when you are just blaspheming someone, when you are condemning someone, condemning not in positive sense, a negative sense, sorry, negative sense, not in positive sense. Suppose there is system and there is
something wrong, then you are highlighting it's not the so grave thing. So the thing is, so domanas, unpleasant mental feeling and fatigue, ill will, इसको बाद के आचार्यों ने इसको बधक चेतना भी कहा, बधक चेतना भी कहा या बधिक चेतना भी कहा, क्रिमिनल किलिंग कॉन्शियसनेस। तुम किसी का इमेज टार्निश करते हो तो उसके इमेज को किल करते हो, नहीं। इफ यू आर एब्यूजिंग समवन तो तुम उसके डिग्निटी को किल करते हो, नहीं। एंड इफ यू आर हिटिंग समवन देन तुम उसके लाइफ को किल करते हो, नहीं। तो जहां भी फटीग संप्रयुक्त आएगा इन मॉडर्न साइकोलॉजी में, क्रिमिनल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांच है। एंड नाउ जेल एजुकेशन एंड जेल साइकोलॉजी इमर्ज हुआ है। जेल साइकोलॉजी, जब तुम अप्लाइड फिलॉसफी में आओगे और फिलोसॉफिकल थेरापी करोगे, तब वहां तुमको जेल साइकोलॉजी बहुत काम आएगा। और जेल साइकोलॉजी पे बुद्धिज्म में बहुत काम हुआ है, समझ गए ना। जेल साइकोलॉजी में खास करके तिहाड़ जेल और जयपुर जेल में बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है थ्रू विपस्सना। तो उस पे कभी मौका मिलेगा, हम लोग कभी आएंगे तो बैठ के चर्चा करेंगे तुम लोगों के साथ। तो जहां भी दो मनस, देखो तुम अगर किसी को किल करते हो, मारते हो और सोमनस से मारते हो, मन के प्रसन्नता के साथ, तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ मैडमैन, नहीं। जो पहला ही डेफिनेशन दिया गया साइको फिजिकल का डायनामिक कॉम्बिनेशन, तो डायनामिक कॉम्बिनेशन नहीं, जब मारता है उस समय दो मनस अनप्लीजेंट मेंटल स्टेटस हाइट पे होता है, नहीं। तो इसीलिए जो बधक चेतना है ये सीड है क्रिमिनल साइकोलॉजी का। और जब आप इसको अप्लाइड फॉर्म में फिलॉसफी को यूज करेंगे तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में इसको देखेंगे आप, ठीक है। अभी जो नया शुरू हो गया है, एक नया ब्रांच फिलॉसफी में इमर्ज हो रहा है, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, ठीक है। तो ये छठा समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट आओ देखते हैं, बताता हूं कि आई हैव सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सूत्राज, क्योंकि अभी 12 बज गया और हम एक ही संग्रह में हैं, ठीक है। तो शेषानी सब्बानी पी पंचपैयास उपेक्षा सहगत, तो उसमें बाकी जो है ना वो न्यूट्रल फीलिंग के साथ बाकी कॉन्शियसनेस फंक्शन करता है। जैसे तुम आ रहे हो, जा रहे हो, अब हम अभी गेस्ट हाउस से यहाँ तक आए, रास्ते में आंख ने बहुत कुछ को देखा लेकिन ब्रेन ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो देखने के बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। या तुमने ब्रश किया, अब थोड़े तुम इसको यहाँ रिकॉर्ड करते हो आज हमने ब्रश किया, बहुत स्वादिष्ट पेस्ट से ब्रश किया, ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दिस। सो दिस इज उपेक्षा, न्यूट्रल नहीं। अब 8वां पे आओ, 8वां इसको कंक्लूड कर रहा है, कह रहा है सुखं दुखं उपेक्षाति विधा, प्लीजेंट फीलिंग, अनप्लीजेंट फीलिंग एंड न्यूट्रल फीलिंग। ये जो फीलिंग है, वेदना फीलिंग, यह 3 तरह, और अगर इसमें हम सोमनस और दोमनस को मिला दिए तो दिस इज ऑफ 5 टाइप्स। ओके, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हुई क्या? सब समझ गया?
अब हम आते हैं हेतु संग्रहों में। क्योंकि वेदना का मैंने बता दिया था कि जो साइकोलॉजी स्टार्ट होता है बुद्धिज्म में, तो वो कहता है तीनी कुशल मूलानी, 3 मूल की बात करता है। कुशल मूल, 3 अकुशल मूल, 6 मूल की बात करता है। तो इसी को हेतु कहते हैं। हेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, मूल और हेतु दोनों एक ही है, लेकिन फंक्शनल स्टेज पे दोनों अलग हो जाता है। मूल क्या है? अब जैसे लोभ है, तो ये मूल है और हेतु है। जब ये काम में फंक्शन होने लगे, तुम्हारे काम को डिसाइड करने लगे, फंक्शन को, तो ये हेतु हो जाएगा। अब मूल थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो गया कि लोभ एक मूल है। यू नो दैट लोभ इज अ मूल। और हेतु, जब तुम्हारे काम में लोभ जुड़ जाए, तो जैसे कलम देख लिया, अब इस जब तुम एक्शन में आ गए, नहीं, एक्शन में आके जब तुम इसको उठाने की बात कर लिए, सोचे अब मेथड शुरू हो गया, मेथोडोलॉजी शुरू हो गया कि सबसे लास्ट में बहाना करना है कुछ कुछ खोजने का, जब सब निकल जाएगा तो धीरे से रख लिया जाएगा। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट इसका आ गया। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, नहीं, ये दो चीजें चूंकि बहुत ही माइन्यूट है और सारा का सारा एक्सप्लेन हो रहा है मॉडर्न साइंस से। देखो, बॉडीली सेंसेशन बुद्धिज्म का पिलर है। और तुमको बता दूं, इस साल का जो नोबेल प्राइज है मेडिसिन का, वो बॉडीली सेंसेशन के ऊपर रिसर्च पे मिला है। वैज्ञानिकों को ग्रुप है, उन्होंने जो सेंसेशन पे काम किया है, उस पे नोबेल प्राइज है इस बार का। सो इनडायरेक्टली दिस नोबेल प्राइज इज ऑन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो हेतु संग्रहों में आओ। हेतु में 6 है। मोरल, कुशल, अलोभ, अदोष, अमोह। और इमोरल, लोभ, ग्रीड, दोष, हेट्रेड एंड मोह, डिल्यूजन। ठीक है, ये अदोष को तत्त मध्यस्थता भी कहा जा रहा है। तत्व मध्यस्थता भी कहा गया, मैत्रीपूर्ण भी कहा गया, मेत्ता भी कहा गया। और अमोह को क्या कहा गया? मोह को यहां पर क्या कहा गया? इग्नोरेंस। मोह जो है सो इग्नोरेंस है बच्चों। अमोह क्या है? नॉलेज है, विद्या है। अमोह जो है विद्या है। क्योंकि अमोह क्या है? धम्म स्वभाव पटिवेधन। जो धर्म के स्वभाव पर एक कवर चढ़ गया है, उसको हटा देना। अब मोह क्या है? धम्म स्वभाव पटिच्छादन। धर्म के स्वभाव को ढक ले। अभी जो तुम्हारा रियल पर्सनालिटी है, दिस इज कवर्ड अप बाय नेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि तुम जो हो वो तो हो नहीं, तुम तो ऑलरेडी निर्वाण प्राप्त हो, शुद्ध बुद्ध हो,
तभी तो शंकर ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, बुद्ध ने कहा कि भाई मनुष्य जो है वो ऑलरेडी निर्वाण प्राप्त है। वो तो अज्ञानता के कारण उस पे इतने परत चढ़े हुए हैं, इसको खत्म कर दो तो खत्म करने के बाद पर्सनालिटी का निखर जाएगा। नहीं, इसीलिए बुद्धिज्म में जो है वो पूरे प्रोसेस को 3 भाग में बांट दिया गया। तो ये तो समझ गए ना, 6 इमोरल रूट्स, 3 मोरल 3 इमोरल। अब देखो इंडिया में तुम लोगों को पहले ही दिन जरूर बताया गया होगा, क्योंकि जो नॉलेज सिस्टम है इंडिया का और खास करके बुद्धिज्म का, उसमें एक है परियत्ति, मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। दूसरा है पटिपत्ति, पटिपत्ति मीन्स प्रैक्टिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, not only study but practice is very important. And the third one is pariyatti, patipatti and pativedhan. Pativedhan means realization. Whatever you have studied in scriptures, whatever you have practiced through scriptures, then you have to realize it. It should be a part of your active life. If it is not a part of your active life, then it means you have not studied the scripture. Buddhism, this is purely result oriented philosophy. Okay, one is the essence of Buddhist philosophy, this is psychoethical philosophy, and another is this is result oriented philosophy. Only mugging up is not sufficient in Buddhist learning. Okay, realization is very important. अब इसमें देखो, तत्थ पंच द्वारा वज्जन, देखिए अभी मैं ये कर रहा हूं कि अभी हमको संक्षेप में जाने दीजिए। अभी चूंकि इन बच्चों को कम से कम एक्सपोजर मिल जाए और उसके बाद तुम लोग सारे क्वेश्चन आंसर जमा करके रखो। और कल हम लोग 10 बजे शुरू कर सकते हैं क्या? वी हैव एनी प्रॉब्लम है? तो कल 10 से 10:30 हम लोग डिस्कशन का रखेंगे, ठीक है? या दोनों को कंबाइन करके भी रख सकते हैं, तो ये लास्ट में ये कर लेंगे। कल टेक्स्ट कम पढ़ाएंगे, क्योंकि आज अभी 3-4 कंपोनेंट है, इसी पे नॉट ओनली बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम बट इंडियन नॉलेज सिस्टम आधारित है और क्लासिकल न्यूरोसाइंस आधारित है। अभी मैं तुमको बताऊंगा 5 मिनट लास्ट में, जो मेरी फाइंडिंग है शेयर करूंगा कि कैसे। और मेरा एक 20 मिनट का यूट्यूब पे है, अब देखो ना, वो लगता है हट गया, क्या हो गया, उसमें है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे बुद्धिस्ट न्यूरोसाइंस अभी वर्ल्ड में शुरू हुआ 80 के दशक में, बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, एवरीथिंग स्टार्टेड। तो बुद्धिस्ट न्यूरोसाइंस कैसे ये हुआ है, इस पर अभी मैं 5 मिनट वो बताऊंगा, फिर मेरा वीडियो है, कोशिश करूंगा अगर मिल जाएगा तो कल सुनवा देंगे। कैसे कैसे इमर्ज हुआ वर्ल्ड में, जो है साइंस के साथ कैसे कनेक्ट हुआ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म, नॉट ओनली बुद्धिज्म, द होल इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो अभी जो है सो हमारे पास 20-25 मिनट है, 12:10 हुआ है, 12:30, 12:15 में खत्म करना है। तो चाय है ना 12:15 से 12:30? नहीं, अच्छा ठीक है,
लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर शाम में तुम लोग अगर बैठ सकते हो, जब क्लास एंड हो जाए तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर तुम में से किसी को हिम्मत है तो, और नहीं है तो फिर अपने अपने घर जाओ। ठीक है? तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग चीज है ना बच्चों, कि तुम्हारा स्टडी का डायमेंशन बदल जाएगा। अभी जो तुम कर रहे हो, बार बार गवर्नमेंट और मोदी जी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि सोसाइटी सेंट्रिक रिसर्च करो। अब भगवान ने तो डे वन से, भगवान बुद्ध ने सोसाइटी सेंट्रिक रिसर्च किया है। हवा में कभी उन्होंने बात नहीं की, हालांकि हवा में बात किसी ने नहीं की, लेकिन अब वो शुद्ध संस्कृत में बोलने लगे तो आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहा। भगवान ने ऐसा प्रयोग कर दिया कि पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। आज जो है सो इंटेलिजेंसिया में बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्यों पॉपुलर होता जा रहा है? अमेरिका में, यूरोप में, यूरोपियन बुद्धिज्म एक नया कंपोनेंट जनरेट हो गया। अब हमारे कई सारे घनिष्ठ मित्र हैं अफ्रीका में, जो बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। देखते हुए कई बार यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे जुड़ गए हैं, बड़े बड़े ये जुड़ गए हैं। हमारे मित्र चार्ल्स जॉनसन, जो पैरेलल टू नोबेल प्राइज है, वो विनर हैं, इंग्लिश के हैं, बट ही इज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, वो जुड़ गए हैं। तो दी आर द थिंग्स। अब हम हेतु संग्रहो, तो पंच द्वारा वज्जन की बात कर रहे थे। 11वां सूत्र, तथ्य पंच द्वारा वज्जन दुई पंच विज्ञान संपटिक्षण संतीरन बोठप्पन हसन बसेन 18 सहेतुक चित्तानी। देखो इसमें एक ही नया चीज है, हसितुपाद चित्त। समझ गए ना? तो हसितुपाद चित्त जो है वो जब मनुष्य का कॉन्शियसनेस प्योर से प्योर होता जाता है, तो वो अपने आप वो एक लाफ्टर फूटता है, हंसता है। वो क्यों हंसता है? क्योंकि तुम दुखी क्यों होते हो? द्वंद के कारण नहीं। when you are not able to understand the real nature of the dharma, नहीं, तो द्वंद चलता रहता है। और डुअलिटी जो है ऑलवेज डोमिनेंट इन योर पर्सनैलिटी। बट व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द डुअलिटी, देन यू आर ऑलवेज हैप्पी। इसीलिए इसको परम सुख कहा गया है। नहीं, परम सुख इसीलिए कहा गया कि देयर इज नो डुअलिटी इन योर पर्सनैलिटी, यू आर ऑलवेज हैप्पी, एवर हैप्पी। ठीक है? उसको हसितुपाद चित्त कहा गया है। तो वहां हेतुओं को बताया गया बच्चों कि ये कैसे, और हेतु जो हैं दे आर, हेलो, हाँ आप बस नीचे रहिए, 15 मिनट हमारी क्लास और है, फिर हम आ रहे हैं। आप वहां किसी से पूछिए, मैं क्लास में। तो क्या है कि ये जो रूट्स हैं ना, ये फंक्शन कैसे, और सारे के सारे रूट जो हैं वो साइकिक फैक्टर है। लोभ भी चेतसिक है, चेतसिक पढ़ाया गया होगा तुमको, ठीक है ना? यू माइट बी नोइंग लोभ, दोष, मोह, ये भी चेतसिक है। और अलोभ, अदोष, अमोह, ये भी चेतसिक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है चेतसिक एंड साइकिक, सॉरी, चेतसिक एंड चित्त का। किस चित्त के साथ किस चेतसिक का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इसमें दिखाया गया कि इसमें 18 चित्तों को अहेतुक कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं होता है। और अब ये 18 कौन से हैं भाई? तो 18 जो है पंच विज्ञान, जब चित्त में पढ़ोगे तो काय विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान,
ये जब उत्पन्न होता है रिजल्टेंट कॉन्शियसनेस के रूप में, तो उस समय 6 में से कोई हेतु फंक्शनल नहीं होता है। वो जो है बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्शन वो उत्पन्न होता है। सुख सहगत काय विज्ञान, चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसीलिए इसको अहेतुक कहा गया, क्योंकि देयर इज नो हेतु ऑपरेशनल विद दिस टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसको जो है ये है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11वां सूत्र जो है, तथ्य पंच द्वारा वज्जन, द्वि पंच विज्ञान, संपटीक्षण, संतीरण, बोठप्पन, हसन बसेन, 18 अहेतुक चित्तानी, शेषानी सब्बानी पी एक सप्तति चित्तानी सहेतुक। और 89 में 71 जो है वो ऑल, तुमको 89 कॉन्शियसनेस तो लिखा दिया गया होगा, लिख लिए हो ना। उसमें 18 अहेतुक है, 18 अहेतुका। देखो उसमें जब कंक्लूड हो रहा होगा तो कंक्लूडिंग रिमार्क में आता है 18 अहेतुका। 18 जो है 18 कॉन्शियसनेस आर नॉन हेतु, नॉन रूटेड, ठीक है। और बाकी 71 जो है वो कहीं ना कहीं हेतुओं से संप्रयुक्त है, ठीक है। अब इसमें और एक चीज जानना है कि मोह जो है, मोह डेल्यूजन, इग्नोरेंस, मोह इमोरल में रहता है। लोभ प्लस मोह एंड दोष द्वेष प्लस मोह। नहीं, अब द्वेष जब भी रहेगा तो इग्नोरेंस के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू हैव हेट्रेड। जब तुम जान रहे हो कि दिस मैन एंड माई सेल्फ बोथ आर सेम, there is no difference between this one and myself. So, and when you have knowledge of life, Buddha has given the knowledge of life, the knowledge of personality. So, ये है, तो उसमें पारमिता भी दिया है। परफेक्शन तुम लोग जरूर पढ़ लेना। तो पारमिता जो है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसको ये करना है। तो मित्रों ये जो है सो नॉलेज को पारमिता जब आ जाएगी तो तुम, इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा ना, अविद्या खत्म हो जाएगी। तो अविद्या खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया, नहीं। और मोह जब खत्म है तो लोभ आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। तो देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड इक्वेशंस का निर्माण करते हैं ये से। अब इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में कर दोगे तो पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा, नहीं, वेरी सिंपल। अब बताइए डॉक्टर साहब, हमको कितना टाइम है? हाउ नहीं, 10 मिनट्स दीजिए। 10 मिनट्स में एक चीज बताना है जो फिर से हम रिपीट भी कर सकते हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके। एंड दैट इज किच्च संगहो। दिस इज प्योर neuroscience, but it has very vast application and implication, and that is किच्च संगह। किच्च संगहो, इसमें 14 स्टेप हैं, ठीक है। 14 स्टेप में पहला है मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ पटिच्च समुत्पाद, अंडरस्टैंड। क्योंकि पटिच्च समुत्पाद इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड दिस इज ऑल्सो डेवलपमेंटल प्लस डे टू डे
applicable psychology. Okay, so and the second one is bhavang. Dasana, Savan, Asadan, Hassa, Ghan. Sixth one is Ghan. 7 Asadan, 8 Phas, and 9 Sampatichan. 10 Santiran, Wothappan. Javan, देखो बच्चों, पटिच्च समुत्पाद is a developmental psychology, but this is functional psychology and developmental as well. Patisandhi consciousness, this is a kind of consciousness when you are entering into the womb of your mother. Understand? So you are active at the time of entering into the womb of mother. A fetus is active at that time, but he is in the form of energy. Okay, so that consciousness is called Patisandhi consciousness. The second one is Bhavang. Bhavang is very deep psychology, and Bhavas Angang Bhavangang. Bhavas Ang Bhavang मतलब जो हमारा बिकमिंग है, जो पूरा का पूरा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंड कॉन्शियसनेस दिस इज द स्टोर हाउस. अंडरस्टैंड? स्टोर हाउस ऑफ thousands and thousands birth. Third one is avajjan. Avajjan, akarshan, attachment towards your life. ठीक है, तुमको इस जीवन से अटैचमेंट है, तृष्णा है, ये आवज्जन है, आकर्षण है. देन इसको जो है आवज्यते आवज्जन, इसका डेफिनेशन बुद्ध घोष ने दिया है. आवज्यते, जो आकर्षित होता है वही आवज्जन है. नेक्स्ट वन इज दर्शन. अब यहां तक जो है वो प्रीवियस लाइफ आ गया. ठीक है, प्रीवियस लाइफ आ गया. कहां कहां? भवंग, पटिसंधि, भवंग, आवज्जन. अब वर्तमान लाइफ में क्या क्या आ रहा है? दर्शन, सीइंग, व्हेन यू हैव फर्स्ट एनकाउंटर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसी तरह से सवन है, लिसनिंग ऑफ वर्ड्स, स्मेलिंग, relishing, contact, and then as a result sampatichan, primary investigation. Primary investigation in your life is very deep psychological element of your personality. Okay, इसको sampatichyate sampatichana, investigation, primary investigation. This is not the final investigation. And santiran,
सम्मा तीर्णंग तुलनंग विमंसनंग तियत्थो। ये सब बहुत डीप बातें हैं, अगर तुम लोग चाहोगे तो फिर मैं बाद में भी कर दूंगा। तो संपटीक्षण जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, discrimination between small and big, discrimination between less important and deep big important, and then बोठप्पन। अब बोठप्पन है बिसुंग बिसुंग अव अविच्छिन्त्वा ठप्पनंग बोठप्पनंग इति ठप्पन। आफ्टर discrimination at different level, establishing the fact in your mind is बोठप्पन। ठीक है। and then javan, javan is a fast movement of your consciousness। javan, jav means horse also, okay। the jav viye dhavanti ti javanang, घोड़े के समान जब दौड़ता है आपका कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द, नहीं तो दिस इज जवन। अब ये इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बाद में समझाऊंगा। इसके बाद है तदालंबन। तदालंबन बार बार आलंबन को ग्रहण करना। जो चीज आंख से अच्छी लग रही है उसको तुम बार बार देखना चाहोगे, जो शब्द अच्छे लग रहे हैं सुनना चाहोगे, ठीक है। और लास्ट में फिर वही, ये संसार कागज की पुरिया बूंद परे गल जाना रे, नहीं, च्युति चित्त, च्युति डिपार्चर। जब आदमी शरीर त्यागता है उस समय का जो कॉन्शियसनेस है उस फीलिंग को कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। वही च्युति चित्त है, द लास्ट कॉन्शियसनेस। द जर्नी स्टार्ट्स विद पटिसंधि एंड एंड्स विद च्युति। फिर हम लोग कल बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। और कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो और and whatever today I have discussed with you, tomorrow हम सब चर्चा करेंगे किसने क्या समझा, समझ गया ना। क्योंकि हम उस पे चर्चा करके फिर इसको ये करेंगे। And now we will continue in situ. So all participants are requested to be present, and the tea will be served here. And chapter Professor Siddharth Singh has already reached, and he will start chapter 6, chapter 8, chapter 9, according to the timetable, chapter 9. So you take tea for 5 minutes, and he will start his lecture after 5 minutes.